पहला पत्रस के किताब 1 பேதுரு पहला अध्याय 1ஆம் அதிகாரம் 18वां वचन। 18ஆம் வசனம்। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उसमें तुम्हारी छुटकारा चांदी या सोना अर्थात नाशवंत वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आपका और मेरा उद्धार निष्कलंक, निर्दोष और बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। உங்களுடைய என்னுடைய இரட்சிப்பு குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே நம்ம மீட்கப்பட்டோம்। हम सबको पता है कि प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया। நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இயேசு சிலுவையில மரித்தாரு। पूरे दुनिया के लोगों के लिए वो क्रूस पर मारा गया। முழு உலகத்திற்காகவே இயேசு சிலுவையில மரித்தார்। उसने अपने शरीर पर एक बूंद खून भी नहीं रहे बिना पूरा खून उसने बहा दिया। இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சரீரத்துல ஒரு சொட்டு இரத்தம் இல்லாம முழு இரத்தத்தை சிந்தினாரு। यीशु जो मारा गया उसको एक्चुअली दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। இயேசு அடிக்கப்பட்டதை நம்ம ரெண்டு வகையாக என்ன செய்யலாம், நம்ம பிரிக்கலாம்। एक है यीशु अपने खून को हमारे लिए दिया है, ஒன்று இயேசு தம்முடைய இரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினார்। दूसरा यीशु अपने शरीर को हमारे लिए दिया। இயேசு தம்முடைய சரீரத்தை நமக்காக தந்தார்। यीशु के खून बहाने से हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष मिलते हैं। இயேசு கிறிஸ்து இரத்தம் சிந்தினதால நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம்। दूसरा यीशु मसीह के शरीर के द्वारा भी हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष आते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்தினால நம்ம अनेक ஆசீர்வாதங்களை பெற்றிருக்கிறோம்। परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், आज यीशु के खून के बारे में कुछ बातों को मैं बताने वाला இந்த हूं। நேரத்தில் நாம் இயேசுவினுடைய இரத்தத்தை குறித்து சில காரியங்கள் நம்ம தியானிக்கலாம்। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। நீங்க நல்லா அறிந்து கொள்ளலாம்। इस दुनिया में एक्चुअली 15 टाइप का ब्लड है आपके अंदर और मेरे अंदर। जो खून है ये प्लस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसा वो पॉजिटिव वो नेगेटिव, ऐसा 15 टाइप ब्लड है। இந்த உலகத்துல 15 வகையான குரூப்ஸ், ब्लड குரூப்ஸ் இருக்கு। ஏ பாசிட்டிவ், பி பாசிட்டிவ், அப்படி நிறைய குரூப்ஸ் இருக்குது। इस पूरे दुनिया के लोगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है, இந்த முழு உலகத்துல இருக்க ஜனங்களுடைய இரத்தத்துல ஓடுகிற அந்த இரத்தம் ये 15 टाइप ऑफ खून में से एक रहेगा। இந்த 15 வகையான குரூப்ல இருந்து ஒரு வகையில இருக்கும்। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। நல்லா கவனிங்க। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவோட இரத்தம் வந்து ये 15 टाइप का खून में नहीं है। இந்த 15 வகையான இரத்தத்தில் சாய்ந்தது கிடையாது। डिफरेंट है, முற்றிலும் வித்தியாசமானது, टोटली डिफरेंट है। முற்றிலும் வித்தியாசமானது। अच्छा ध्यान से समझ நல்லா கவனிங்க। यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य है। இயேசுவுடைய இரத்தத்துல மிகவும் வல்லமை உள்ளது। यीशु का खून सबसे अलग है। இயேசுவுடைய இரத்தம் எல்லாவற்றை காட்டிலும் தனிமையானது। देखिए, एक व्यक्ति का खून को डीएनए टेस्ट करने से, ஒரு மனிதனுடைய இரத்தத்தை நம்ம டிஎன்ஏ பண்ணும் பொழுது उसका पिताजी कौन है कर हम पहचान सकते हैं। அவனுடைய தகப்பன் யார் என்பதை நம்ம கண்டுபிடித்து விடலாம்। लेकिन यीशु का खून को टेस्ट करने से, இயேசுவுடைய இரத்தத்தை நம்ம பரிசோதிக்கும் பொழுது उससे उसका पिताजी कौन है करके नहीं पता चलेगा। அவருடைய தகப்பன் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। நல்லா கவனிங்க। यीशु का पिताजी कौन है करके नहीं पहचान सकते। அவருடைய இரத்தத்தை நம்ம சோதிக்கும் பொழுது அவருடைய தகப்பன் யாருன்னு தெரியாது। क्योंकि ஏனென்றால் देखिए, आपको और मुझे, हम सबको ये संसार के रीति में एक पिताजी है, உங்களுக்கு எனக்கு உலகத்தில் பிரகாரமாக ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார்। लेकिन यीशु का ऐसा नहीं है। ஆனா இயேசுக்கு அப்படி கிடையாது। यीशु का पिता कौन है? இயேசுவுடைய தகப்பனார் யாரு? परमेश्वर है। हालेलुया, ஆண்டவர்। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु का खून जो है टोटली क्या है, डिफरेंट है। இயேசுவுடைய இரத்தம் முற்றிலும் வித்தியாசமானது। टोटली यीशु का खून जो है डिफरेंट है। இயேசுவுடைய இரத்தம் முற்றிலும் வித்தியாசமானது। परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, इसलिए यीशु का खून में देखिए बहुत सामर्थ्य है। இயேசுவுடைய இரத்தத்துல ரொம்ப வல்லமை உள்ளது। देखिए, एक्चुअली आप देखिए, ये सब एक्चुअली जांच करके लोगों ने बताया है। இதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி ஜனங்கள் சொன்னாங்க। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, நல்லா கவனிங்க। देखिए एक्चुअली आप देखिए
पुराने नियम के समय पर आप देखेंगे பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது याजक लोग क्या करते हैं, ஆசாரிகள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் मेमना का जो खून है बलि चढ़ाते हैं, பலி செலுத்துவார்கள். वो खून को क्या करता है, प्रधान याजक महापवित्र स्थान में लेकर அந்த இரத்தத்தை பிரதான ஆசாரியர் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள கொண்டு போவான். और वहां पर जो संदूक है, அங்க உள்ள உடன்படிக்கை மேல संदूक के ऊपर एक मर्सी सीट करके है, அவங்க உடன்படிக்கை மேல ஒரு மெர்சி இது கிருபாசன பெட்டி இருக்குது. उसमें चिटकता है, वो खून को चिटकना, அந்த இரத்தத்தை தெளிப்பார்கள். सब लोगों के पापों के लिए वो खून उसमें चिटकते हैं. எல்லாருடைய பாவத்திற்காக அந்த இரத்தம் அல்ல தெளிக்கப்படும். आप बाइबल को अच्छा से पढ़कर देख सकते हैं. நீங்க பைபிளை நல்ல ஏற்பாட்டை படித்து பார்க்கலாம். को निकाल के बताने के लिए टाइम नहीं है, எல்லாத்தையும் எடுத்து படிக்க டைம் கிடையாது. इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं. ஆகவே நான் அப்படியே சொல்லுகிறேன். अब एक्चुअली कुछ शास्त्र के जो खोजी लोग हैं, சில பண்டிதர்கள் இவ்வாறாக சொல்லுகிறார்கள். उन्होंने क्या किया, जांच करने के लिए शुरू किया. அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ண பார்த்தார்கள். क्योंकि वाचा का संदूक भी इजरायली लोगों के पास नहीं था. உடன்படிக்கையும் அவங்க கிட்ட கிருபாசன பெட்டியும் கிடையாது. அவங்ககிட்ட यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने अपने किताब में कहा है कि वो किधर तो एक गुफा में रखा है करके. அந்த கிருபாசன பெட்டியை ஏதோ ஒரு குகைக்குள்ள வைத்திருக்கிறார்கள் என்று எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார். यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், कौन सा गुफा है, किधर है, किसी को पता नहीं. அது எந்த குகை எங்க இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. अभी जो जांच कर रहा था, இப்போ அவங்க அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். उन्होंने क्या क्या जांच किया, அவங்க அறிந்து கொண்டார்கள். यीशु को क्रूस पर कहां पर मारा है. இயேசு சிலுவையில எங்க அடித்தார்களோ पहाड़ के ऊपर ही रखे, ஒரு மலை மேல தான் இயேசு சிலுவையில அடித்தார்கள். वो पहाड़ में ही क्या 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 सर्च करने शुरू किया. அங்கே அவங்க தேட ஆரம்பித்தார்கள். वहां पर एक गुफा था, அங்க ஒரு குகை இருந்தது. और उस गुफा के अंदर, அந்த குகைக்குள்ள தான் उस गुफा के अंदर वाचा का संदूक उनको मिल गया है. அங்கதான் உடன்படிக்கை பெட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. संदूक के ऊपर जो है, அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி மேல थोड़ा खून उसमें जमा था. அதுல கொஞ்சம் ரத்தம் இருந்தது. वो खून को उन्होंने क्या किया, सूख गया था वो खून, அந்த ரத்தம் ரொம்ப காய்ந்து போயிருந்தது. वो खून को लेकर लेबोरेटरी में जाकर चेकिंग के लिए दिया. அந்த ரத்தத்தை லேபரேட்டரியில போய் செக் பண்ணாங்க. तब पता चला कि वो खून सबसे क्या है, अलग है. அந்த ரத்தம் எல்லாச்சு காட்டிலும் அழகானது, वो खून इस दुनिया में किसी मनुष्य का खून அந்த ரத்தம் இந்த மனிதனுடைய ரத்தம் கிடையாது. वो खून टोटली क्या है, अलग है. அந்த ரத்தம் ரொம்ப தனியானது. वो खून यीशु का खून है करके उन्होंने कहा. அந்த ரத்தம் இயேசுனுடைய ரத்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. उन्होंने कहा कि वो खून में अभी भी क्या है, जीवन है करके कहा. இப்பொழுது அந்த ரத்தத்துல ஜீவன் இருக்குது சொன்னாங்க. अभी भी क्या है, जीवन है இப்பொழுது அந்த ரத்தத்துல ஜீவன் இருக்கிறது. इसलिए कहते हैं यीशु का खून में क्या है, बहुत सामर्थ्य. இயேசுடைய ரத்தத்தில் ரொம்ப வல்லமை உள்ளது. उसका खून 2000 साल हो गए, लेकिन उसमें अभी भी क्या है, जीवन है. 2000 ஆண்டுகள் ஆனது, இப்பொழுது அந்த ரத்தத்துல வல்லமை உள்ளது. दुनिया के सब खून से यीशु का खून टोटली अलग है. எல்லா ரத்தத்தை காட்டிலும் இயேசுனுடைய ரத்தம் தனிமையானது. यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य है. இயேசுடைய ரத்தத்தில் ஆண்டவருடைய வல்லமை காணப்படுகிறது. बीमारी को चंगाई करने का सामर्थ्य यीशु के வியாதியை खून में है. சுகப்படுத்திய வல்லமை அல்ல காணப்படுகிறது. हर एक पापों को शुद्ध करने का सामर्थ्य यीशु के खून பாவத்தை में है. சுத்திகரிக்கிற வல்லமை அல்ல காணப்படுகிறது. यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य. இயேசுடைய ரத்தத்தில் அவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது. परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, देखिए, इसलिए यीशु का खून के बारे में ही मैं आज आपके बीच में कुछ बातों को हम நான் இந்த நாளை இயேசுடைய ரத்தத்தை சில காரியங்களை உங்கள் மத்தியில தியானிக்க விரும்புகிறேன். यीशु का खून में से हमें बहुत सारा आशीष मिलता है. இயேசுடைய ரத்தத்துல நமக்கு अनेक ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கிறது. उसमें से मैं कुछ बातों को सिर्फ मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं. அல்லது நான் சில காரியங்கள் உங்கள் மத்தியில சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ले लीजिए, எடுத்து வாசிக்கலாம். एफिसियों की पत्री எபேசியர் पहला अध्याय 1 அதிகாரம் 7वां वचन. 7 வசனம். 7वां वचन पढ़िए. एफिसियों की पत्री எபேசியர் पहला अध्याय 1 அதிகாரம் 7वां वचन. पापों की क्षमा, हालेलुया. அல்லேலூயா. उस वचन में एकदम
क्लियरली लिखा है அதுல कि தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது यीशु मसीह के खून के द्वारा இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தின் மூலமாக आपको और मुझे உங்களுக்கும் எனக்கும் एक आशीष मिलता है, ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது. पापों की क्षमा मिलता है, பாவத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு மன்னிப்பு கிடைக்கிறது. पापों की क्षमा हमें मिलता है பாவத்திலிருந்து ஒரு மன்னிப்பு கிடைக்கிறது. यीशु के खून के द्वारा இயேசுவோட இரத்தத்தின் மூலமாக हमें पापों की क्षमा मिलता है। பாவத்திலிருந்து நமக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கிறது. अगर आप और पढ़ेंगे पहला यूहन्ना के किताब पहला अध्याय 7वां वचन 1 पढ़ेंगे, யோவான் 1:7 படிக்கும் பொழுது वहां पर लिखा है कि அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. हाँ 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 उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। இயேசுவுடைய இரத்தம் நம்முடைய சகல பாவத்திலிருந்து நம்மை சுத்திகரிக்கும். देखिए यीशु का खून से हमें मिलने वाला बड़ा आशीष पापों की क्षमा। இயேசுடைய இரத்தத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்க பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் மன்னிப்பு. इस दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए आपको पापों की क्षमा नहीं मिलती। இந்த உலகத்துல நம்ம எங்கு போனாலும் பாவத்திலிருந்து ஒரு மன்னிப்பு நமக்கு கிடைக்காது. सिर्फ पापों का क्षमा को पाने के लिए सिर्फ यीशु के पास से हम पा सकते हैं। பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம இயேசுவிடம் தான் வர வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे लोग ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க यीशु मसीह का खून இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தம் हमें सब पापों से हमें शुद्ध करता है, நம்முடைய எல்லா பாவத்திலிருந்து நம்மை சுத்திகரிக்கும், हमें पवित्र करता है। நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தும். यही सबसे बड़ा आशीष है। இதுதான் எல்லாவற்றை காட்டிலும் பெரிய ஆசீர்வாதம். देखिए इससे बड़ा आशीष और कुछ भी नहीं है। இதை விட பெரிய ஆசீர்வாதம் வேற எதுவும் கிடையாது. देखिए, हम जो पाप करते हैं நாம் பாவம் செய்யும் பொழுது एक्चुअली ये पाप एक्चुअली हमारा पीछे पीछे क्या करता है आता இந்த है। பாவம் நம் பின்னாடி வந்து கொண்டே இருக்கும். आप पढ़ सकते हैं நீங்க எடுத்து வாசிக்கலாம். ये पाप जो है हमारा पीछे पीछे क्या करता है, பாவமானது நம் பின்னாடி வந்து கொண்டே இருக்கும். वो हमारे पीछे आते हैं, நம் பின்னாடியே வந்து கொண்டே वो और இருக்கும். किधर नहीं जाता है, அது எங்கேயும் போகாது. बल्कि हमारा पीछे पीछे क्या करता है, நம் பின்னாடியே வந்து கொண்டே இருக்கும். आता ही रहता है। வந்து கொண்டே இருக்கும். अब पहला तीमुथियुस में पढ़ सकते 1 हैं, தீமோத்தேயு ले लीजिए 5वां अध्याय 5ஆம் அதிகாரம் 24वां वचन पढ़िए। 24 படிக்கலாம். हाँ, कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाता है। हाँ हाँ, कुछ के पीछे से क्या करते आता है। हालेलुया, அல்லேலூயா. हम जो पाप करते हैं நாம் செய்கிற பாவங்கள் वो पाप हमारे पीछे पीछे क्या அது நம் करता है, பின்னாலே வந்து கொண்டே இருக்கும். वो आपके पीछे ही आएगा। உன் பின்னாடியே வந்து கொண்டே आप இருக்கும். कहीं पर भी जाइए, நீங்க எங்க வேணாலும் போகலாம். आप कहीं पर भी जाइए, நீங்க எங்க வேணாலும் போகலாம். आप इंडिया को छोड़ के अमेरिका में भी நீங்க जाएंगे, இந்தியா விட்டுட்டு அமெரிக்காவுக்கு போங்க. वो अमेरिका में भी आपके पीछे आएगा। அந்த பாவம் உங்க பின்னாலே தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். कहीं पर भी जाइए, நீங்க எங்க போனாலும் पाप आपके पीछे पीछे आएगा। பாவம் உங்களை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். आप समझ रहे हैं, உங்களுக்கு புரியுதா? पाप एक व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। ஒரு பாவம் உங்களை விடாது. हम सोचते हैं कि मैंने पाप किया खत्म हो गया, நான் பாவம் செஞ்சுட்டு முடிஞ்சிட்டே நாம் நினைக்கலாம். ऐसा हम सोचते हैं। அப்படி நாம் நினைப்போம். नहीं नहीं नहीं, वो पाप आपका पीछे पीछे அந்த आएगा। பாவம் நம் பின்பாக வந்து கொண்டே இருக்கும். देखिए और भी आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति के किताब में पढ़ेंगे, ஆதியாகமத்து புஸ்தகத்துல நீங்க வாசிக்கலாம். उसमें लिखा है कि पाप आपके द्वार पर क्या करता है, பாவம் வாசற்படி படுத்திருக்கும். देखिए परमेश्वर के बच पढ़िए எடுத்து வாசிக்கலாம். 4वां अध्याय 4ஆம் அதிகாரம் उसका 7वां वचन पढ़िए। 7ஆம் वचனம். हाँ हाँ, यदि तू भला न करे पाप तेरे द्वार पर क्या करता है, छिपा रहता है। हालेलुया, அல்லேலூயா. पाप किधर रहेगा, பாவம் எங்க இருக்கும்? आपके दरवाजे में रहेगा, நம்முடைய வாசல்படியில இருக்கும். आपके घर के दरवाजे में आप पाप क्या करेगा, रहेगा। வாசல்படியில பாவம் இருக்கும். परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் हम जो पाप करते हैं நாம் எந்த பாவம் செய்கிறோமோ वो और किधर नहीं जाएगा, அது எங்கேயும் போகாது. दूसरे के घर पर नहीं जाएगा, மற்றவர்களுடைய வீட்டுல போகாது. आपके घर पर रहेगा। உங்க வீட்டுல தான் இருக்கும். आपके घर के दरवाजा में क्या करेगा, पड़ा உங்க रहेगा। வீட்டு வாசல்படியில தான் இருக்கும். सोचिए आपके घर के दरवाजे में एक पत्थर
पड़ा रहेगा कैसा रहेगा? உங்க வீட்டு வாசல்படி ஒரு கல் இருக்கு, எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க. आपने अगर ज्यादा पाप किया तो बड़ा पत्थर पड़ा रहेगा, நீங்க பெரிய பாவம் செஞ்சா பெரிய கல் இருக்கும். कैसा रहेगा? எப்படி இருக்கும்? अंदर आ सकते जा सकते, உள்ள வர முடியுமா போக முடியுமா? सोचिए ना, आ सकते जा सकते, உள்ள வர முடியுமா போக முடியுமா? आपके घर के अंदर आशीष नहीं आ सकता है, உங்க வீட்டுக்குள்ள ஆசீர்வாதம் வர முடியாது, घर के अंदर शांति नहीं आ உங்க सकता, வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் வர முடியாது. पाप क्या करेगा? रोकेगा। பாவம் தடை பண்ணும். इसलिए परमेश्वर के बच्चे ஆகவே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் நாம் देखिए, यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से हमें शुद्ध करेगा। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்முடைய சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். सब पापों से हमें शुद्ध करता है। எல்லா பாவங்களிலிருந்து நம்மை சுத்திகரிக்கும். यीशु के खून के द्वारा हमें वो आशीष मिलता है। அந்த இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமா நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் यीशु கொள்ளலாம். के खून में वो सामर्थ्य है। அந்த இயேசுவின் இரத்தத்தில் ஆண்டவருடைய வல்லமை காணப்படுகிறது. यीशु के खून में बहुत सामर्थ्य है। இயேசுவின் இரத்தத்தில் மிகவும் வல்லமை காணப்படுகிறது. आपके सारे पापों को आपको शुद्ध करेगा। அது உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் சுத்திகரிக்கும். परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், देखिए मैं क्यों कहता हूँ, நான் ஏன் சொல்லுகிறேன்னா यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य। இயேசுவுடைய இரத்தத்தில் மிகவும் வல்லமை காணப்படுகிறது. आप अच्छा ध्यान से समझ, நல்ல கவனிங்க. यीशु के खून को देखकर इसलिए शैतान भी क्या करता है? बहुत डरता है। இயேசுவுடைய இரத்தத்தை பார்த்து பிசாசு பயப்படுது. शैतान और किसी से नहीं डरेगा, பிசாசு வேற யாரை பார்த்து பயப்படாது. लेकिन यीशु का खून से बहुत डरता है। இயேசுவுடைய இரத்தத்தை பார்த்து பிசாசு மிகவும் பயப்படும். यीशु का खून को आप लाएंगे, बहुत डरता है। இயேசுவுடைய இரத்தத்தை கொண்டு வரும்போது பிசாசான மிகவும் பயப்படும். मैं एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा ஒரு பிசாசு போராட்டத்தில் உள்ளவங்களுக்காண்டி ஜெபிக்கும் பொழுது हूँ। उन्होंने मेरे पास पानी मांगा, அவங்க தண்ணி கேட்கும் பொழுது मैंने क्या किया? प्रार्थना करके पानी को प्रार्थना करके அதை मैंने दिया। பாஸ்டர் வந்து ஜோம் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது ठीक है, आप पी लो करके मैंने दिया। குடிங்கன்னு கொடுக்கும்போது मेरे घर के किचन में मैंने प्रार्थना किया। பாஸ்டர் அவங்க கிச்சன்ல ஜோம் பண்ணாங்க. अच्छा ध्यान से सुनिए, मैंने किचन में प्रार्थना किया, கிச்சன்ல ஜோம் பண்ணாங்க. उसको लाके फिर मैंने दिया। அவங்க கையில கொடுத்தோம். वो देखा नहीं, एक्चुअली मैं प्रार्थना करते उसको पता नहीं था, அவங்க ஜோம் பண்ணது அவங்களுக்கு தெரியாது. लेकिन मैंने पानी दिया तो उसने ग्लास सब ले लिया मेरे அவங்க हाथ से, கிளாஸ் வாங்கிட்டாங்க. लिया। उसके बाद पीने के लिए जब उसने ऐसा देखा, அவங்க குடிக்கும் பொழுது பார்த்தார்கள் उसका आंख सब बड़ा हो गया, அவங்க கண்ணுல பெருசாயிட்டு. उसका आंख पूरा ऐसा बड़ा करने लगा। அவங்க கண்கள்லாம் பெருசாயிட்டு. मैं बोला क्या हो गया? पी लो पानी है ना, என்னாச்சு? குடிக்க வேண்டியதானே, पी लो करके मैं बोला। குடிக்க வேண்டியதானே சொன்னோம். बोला नहीं, இல்ல बोला पानी है, पी लो। தண்ணி தானே, குடிக்க வேண்டியதானே. ऐसा मुंडी हिलाने लगा, இல்லன்ட்டாங்க. मुंडी हिलाने लगा, இல்லன்ட்டாங்க. नहीं छी, இல்ல வேண்டாம் नहीं चाहिए करके வேண்டாம். बोला। मैं बोला क्या हो गया? என்னாச்சு? हाँ, वो बोला ये पानी नहीं है। இது தண்ணி मैं கிடையாது, बोला फिर यीशु का खून है, पी ले। இயேசுடைய ரத்தம் குடி. यीशु का खून मैं तुझे देता हूँ, पी ले करके। இயேசுடைய ரத்தத்தை கொடுங்க, குடி. पिया ही नहीं उसने। குடிக்கவே இல்லை. उसके बाद मैं नॉर्मल पानी मैंने क्या किया? प्रार्थना करे बिना मैंने ला कर दिया, சாதா தண்ணி கொடுத்தோம், तब वो पी लिया। அப்ப அது குடிச்சது. सोचिए, யோசித்து பாருங்க. शैतान यीशु के खून से डरता है। பிசாசானவன் இயேசுடைய ரத்தத்தை பார்த்து பயப்படும். हम जो इधर तेल पानी प्रार्थना कर कर देते हैं, நம்ம தண்ணி எண்ணெல்லாம் ஜெபம் பண்ணி वो கொடுக்கிறோம், आपको नहीं दिखेगा। நமக்கு கண்களுக்கு அது தெரியாது. आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पानी है, ये तो நம்ம तेल है। யோசிப்போம் தண்ணியே இது लेकिन எண்ணெயே. सच बात ये உண்மை है कि என்னன்னா वो तेल नहीं है, प्रार्थना करने के बाद में वो यीशु का खून है। ஜெபித்த பிறகு அது இயேசுடைய ரத்தமாக மாறுகிறது. वो पानी नहीं है, वो यीशु का खून அது है। தண்ணி கிடையாது, அது இயேசுவின் ரத்தமாக परमेश्वर மாறுகிறது. के बच्चे लोग, मैं क्यों ஆண்டவருடைய कहता हूं, यीशु பிள்ளைங்க, का खून में बहुत இயேசுடைய सामर्थ्य है। ரத்தத்துல ரொம்ப வல்லமை இருக்கிறது. यीशु के खून में बहुत இயேசுடைய सामर्थ्य है। ரத்தத்துல ரொம்ப வல்லமை உள்ளது. एक बार देखिए, एक व्यक्ति दारू पी के आया था, ஒரு बहुत மனிதன் தண்ணி அடிச்சிட்டு வந்தான். नशे में था, जबरदस्ती ரொம்ப करके தண்ணி हमें அடிச்சிட்டு வரும் பொழுது उठा के लाके उपवास का प्रार्थना में रखे थे। எடுத்து உபாச பிரேயர்ல வைத்தாங்க. प्रार्थना खत्म होने के बाद में मेरे पास प्रार्थना करने के लिए लाए। ஜெபம் முடிஞ்ச பிறகு ஜெபத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க. मैंने प्रार्थना करते समय मैंने बोला, நான் பாஸ்டர் ஜெபிக்கும்போது சொன்னாங்க, यीशु आप अपना खून को उंडेल दीजिए। இயேசுவின் ரத்தத்தை ஊற்றுங்க. वो आदमी बहुत नशे में था, அந்த மனுஷன் ரொம்ப நசால இருந்தான், बहुत नशे में था। மிகவும் நசால இருந்தான். ऐसे प्रार्थना में भी ऐसे ही पढ़ा था। அப்படி ஜெபத்திலயும் அப்படிதான் இருந்தாரு. मैं प्रार्थना किया, खत्म होते ही उसने ऐसा 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 देखा। ஜெபம் முடிஞ்சிட்டு அப்படி உடம்பு அப்படி சரீரத்தை அப்படி பாக்குறாரு. मैंने पूछा क्या हो गया करके, நான் கேட்டேன் என்னாச்சுன்னு. क्या हो गया करके पूछा। என்னாச்சுன்னு கேக்குறேன். तुरंत वो बोला नहीं, मेरा शर्ट पूरा गीला हो गया था। என்னோட ஷர்ட் முழுவதும் आप ஈரமாயிட்டு. प्रार्थना करते समय मेरे ऊपर कुछ तो खून ऐसा उंडेला कोई நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது ஏதோ ரத்தம் என் மேல விழுந்தது. इसलिए मैं अभी सोच रहा था मेरा शर्ट पूरा खून से भर गया, मैं कैसा घर पे जाऊंगा இப்போ என் ஷர்ட் ஃபுல்லா ரத்தமாயிட்டு நான் எப்படி வீட்டுக்கு इसलिए मैं போவேன். ऐसा देखा करके அதனால நான் அப்படி பார்த்தேன். उसका नशा पूरे रीति से उतर गया, அவருடைய போதை முழுவதும் இறங்கி விட்டது. पूरा उतर गया।
முழுவதும் இறங்கி விட்டது सोचिए मैं क्यों कहता यीशु का खून में बहुत இயேசுடைய இரத்தத்துல மிகவும் வல்லமை உள்ளது यीशु का खून में बहुत இயேசுடைய இரத்தத்துல மிகவும் வல்லமை உள்ளது यीशु का खून सारे पापों को क्षमा करता है இயேசுடைய இரத்தம் ஆண்டவருடைய நம்மளுடைய பாவங்களுக்கு சுத்திகரிக்கும் इतना सामर्थ यीशु के खून में இவ்வளவு வல்லமை இயேசுடைய இரத்தத்துல காணப்படுகிறது सेकंड मैं कहता हूं இரண்டாவது நான் சொல்லுதேன் पढ़िए प्रकाशित वाक्य के किताब வெளிப்படுத்தின விசேஷம் उसका 12वां अध्याय 12ஆம் அதிகாரம் 11वां वचन 11ஆம் வசனம் प्रकाशित वाक्य के किताब வெளிப்படுத்தின விசேஷம் मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हुए हालेलुया हालेलुया सेकंड यीशु के खून के द्वारा இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாக सेकंड ब्लेसिंग हमें क्या मिलता है இரண்டாவது blessing நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா जय मिलता है நமக்கு ஜெயம் கிடைக்குது जय मिलता है நமக்கு ஜெயம் கிடைக்குது यीशु के खून के द्वारा हमें जय இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாக நமக்கு ஜெயம் கிடைக்குது परमेश्वर के बच्चे लोग ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் पाप के ऊपर हमें जय मिलता है பாவத்தின் மேல நமக்கு ஜெயம் கிடைக்குது शैतान के ऊपर हमें जय பிசாசின் मिलता மேல है நமக்கு ஜெயம் கிடைக்குது संसार के ऊपर हमें உலகத்தின் जय மேல் मिलता நமக்கு ஜெயம் கிடைக்குது है यीशु का खून से हमें जय मिलता है இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாக நமக்கு ஜெயம் கிடைக்குது यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य है இயேசுடைய இரத்தத்துல ரொம்ப வல்லமை காணப்படுகிறது यीशु का खून में बहुत இயேசுடைய இரத்தத்துல ரொம்ப வல்லமை காணப்படுகிறது यीशु के खून में हमें जय मिलता है இயேசுடைய இரத்தத்துல ஜெயம் கிடைக்கும் एक व्यक्ति ने इस तरह से गवाही दिया ஒரு மனுஷன் இவ்விதமாக சாட்சி சொன்னான் मेरे जीवन में मैं सब बातों के लिए என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்திற்காகவும் यीशु का लहू की जय यीशु का लहू की जय करके बोल के இயேசு இரத்தம் ஜெயம் இயேசு இரத்தம் ஜெயம் சொல்லிக்கொண்டே सब चीज में मैंने जय पाया எல்லாவற்றிலும் நான் ஜெயம் பெறுவேன் उसका जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आने दो அவன் வாழ்க்கை எந்த ஒரு பிரச்சனை வரட்டும் कुछ भी प्रॉब्लम आने दो எந்த ஒரு பிரச்சனை வரட்டும் बस वो एक ही बात कह रहा है यीशु का रक्त जय ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்வார் இயேசு यीशु இரத்தம் का ஜெயம் रक्त जय இயேசு இரத்தம் यीशु ஜெயம் का रक्त இயேசு जय இரத்தம் यीशु ஜெயம் का रक्त இயேசு जय இரத்தம் ஜெயம் यीशु का रक्त जय இயேசு இரத்தம் ஜெயம் बस ऐसा ही प्रार्थना कर அப்படியே ஜெபிப்பார்கள் कहते हैं प्रभु मुझे सब चीजों में जय दे இயேசு எனக்கு எல்லா காரியத்திலும் இருந்து விடுதலை கொடுப்பாரு यीशु का खून में इतना सामर्थ्य है இயேசுடைய இரத்தத்துல அவ்வளவு மாதிரி வல்லமை காணப்படுகிறது यीशु का खून में इतना पावर है இயேசுடைய இரத்தத்துல அவ்வளவு மாதிரி வல்லமை காணப்படுகிறது इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் यीशु का खून से हमें जय मिलता है ஆண்டவருடைய இரத்தத்துல நமக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் पाप के ऊपर भी हमें क्या करेगा जय मिलेगा பாவத்திலே நமக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் पाप के ऊपर भी हमें क्या मिलेगा जय பாவத்திலே இருந்து நமக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் मिलेगा। एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना ஒரு மனிதனுடைய காரியத்தை நான் அறிந்தேன் एक पुस्तक में मैंने ஒரு पढ़ा புஸ்தகத்தில் படித்தேன் उसमें लिखा था அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது वो व्यक्ति एक्चुअली ऐसा था कि जैसा घोड़ा का जो रेस होता है घोड़ा का रेस குதிரை ரேஸ் தெரியுதுன்னு उसमें पैसा रखते हैं அதுல பைசா வச்சு விளையாடுவோம் अब आप सुने हैं ऐसा உங்களுக்கு தெரியுமா அதுதான் नहीं सुने हाँ रेस कोर्स में ரேஸ் கோர்ஸ் தெரியுதானே उसमें कुछ लोग उसमें बैठ के कमाते हैं அதுல உட்கார்ந்து நிறைய பேர் சம்பாதிப்பார்கள் कुछ लोग उसमें पैसा ये भी करते हैं और लॉस भी हो जाता நிறைய பேருக்கு லாஸும் ஆகும் है जैसा आप ये लॉटरी निकालते ना ऐसा லாட்டரி எப்படி அதே போல அது அவங்களுக்கு லாஸும் ஆகும் आप समझ रहे हैं புரியுதா உங்களுக்கு एक एक घोड़ा के ऊपर रेस पैसा रखते ஒவ்வொரு குதிரை மேலயும் ரேஸ் हैं வைப்பாங்க घोड़ा अगर जीत गए तो इनको पैसा मिलेगा அந்த குதிரை ஜெயிச்சிட்டா பைசா घोड़ा हार गया तो इनका அந்த पैसा குதிரை தோத்துட்டா பைசா கிடையாது उसमें वो व्यक्ति बहुत अडिक्ट था அதுல அந்த மனுஷன் ரொம்ப அடிக்டா இருந்தான் तब उसने प्रभु को ग्रहण किया அந்த மனிதனை ஆண்டு ஏற்றுக்கொண்டான் यीशु के बारे में सुना இயேசுவை வச்சு கேட்டான் यीशु को ग्रहण किया இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டான் उसके बाद में क्या लेकिन वो अडिक्ट था उसमें से बाहर वो आ गया அந்த அடிஷன் வெளியே வந்து விட்டான் वो पाप को उसने छोड़ दिया பாவத்தை விட்டு விட்டான் उसमें से बाहर आ गया அதுல வெளியே வந்து விட்டான் लेकिन आने के बाद में भी क्या है पता है क्या வெளியே வந்த பிறகு பாருங்க कभी कभी वो माइंड में आ जाता था அவன் மைண்ட்ல வரும் कभी कभी ऐसा वो माइंड में आ जाता था அவன் மைண்ட்ல வரும் वो शैतान माइंड में आकर क्या करता था पूरा उसका माइंड को अभी अभी खेलने जा இப்பவும் அவன் மைண்ட்ல விளையாட போ ऐसे समय पर அப்படிப்பட்ட நேரத்துல यीशु का लहू की
जय, యేసు రక్తం జయం, यीशु का लहू की యేసు రక్తం जय, జయం, यीशु का लहू యేసు की ரக்తం जय। ஜெயம். ऐसा कहते कहते அப்படி कहते சொல்ல 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 वो शैतान थोड़े टाइम में निकल அந்த जाए। பிசாசு அப்படியே வெளியே वो போயிடும். माइंड में ऐसे ही उसने अपने पाप के ऊपर जय पाई। அப்படிதான் அந்த மனிதன் பாவத்தை ஜெயித்தான். परमेश्वर के बच्चे, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் वही मैंने कहा, यीशु के खून के द्वारा हर पाप के ऊपर आप जय पा सकते இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமா நம்ம ஒவ்வொரு பாவத்திலிருந்து நமக்கு हैं। விடுதலை यीशु के கிடைக்கும். खून के द्वारा हर शैतान के ऊपर हम जय पा सकते हैं। இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமா ஒவ்வொரு பிசாசுடைய கிரியையில் நம்ம ஜெயிக்க क्योंकि यीशु முடியும். का खून में इतना सामर्थ्य है। இயேசுடைய இரத்தத்துல அவ்வளவு மாதிரி வல்லமை காணப்படுகிறது. परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் कोई भी नशा का चीज क्यों ना हो, எந்த ஒரு போதை வஸ்துகளா कुछ இருக்கட்டும், भी एडिक्शन क्यों ना हो, எந்தவித அடிஷனா இருக்கட்டும், आप यीशु के खून के द्वारा उसमें जय पा सकते இயேசுடைய இரத்தத்தினால் நமக்கு விடுதலை हैं। கிடைக்கும். यीशु के खून के द्वारा जय पा सकते हैं। இயேசுடைய இரத்தத்தினால நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். क्या रे? हाँ? शांत बैठने का, ये तो कान में होल डाल के लटका देगा, याद रख ले ऊपर। यीशु के खून के द्वारा இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக हमें सब चीजों में जय मिलता है। எல்லா விஷயத்திலும் நமக்கு ஜெயம் கிடைக்கும். हालेलुया। அல்லேலூயா. थर्ड ब्लेसिंग मैं कहता हूं, மூணாவது blessing तीसरा आशीष ले लीजिए। कोलोसियों की पत्री, கொலோசியர் पहला अध्याय 1ஆம் அதிகாரம் 20वां वचन। 20ஆம் வசனம். हाँ हाँ हाँ, मेल मिलाप करके, यीशु का खून के द्वारा मेल मिलाप, இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக நமக்கு சமாதானம். यीशु का खून के द्वारा मेल मिलाप, இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக நமக்கு சமாதானம். यीशु के खून के द्वारा हमें मिलने वाला थर्ड ब्लेसिंग शांति। இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற மூணாவது blessing சமாதானம். शांति बोलेंगे तो சமாதானம் என்று சொல்லும் பொழுது फर्स्ट क्या शांति? முதலாவது என்ன சமாதானம்? परमेश्वर और हमारे बीच में शांति। ஆண்டவருக்கு நமக்கும் இடையில ஒரு சமாதானம். परमेश्वर और हमारे बीच में क्या है? शांति। ஆண்டவருக்கு நமக்கும் இடையில ஒரு சமாதானம். सेकंड, हमारे जीवन में प्रभु शांति देते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒரு சமாதானத்தை தருகிறார். देखिए, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் हम सब पाप करने के कारण நாம் எல்லாரும் பாவம் செய்ததின் நிமித்தம் हम प्रभु का दुश्मन हो गए, ஆண்டவருக்கு விரோதிகளானோம். प्रभु का विरोधी हो गए। நம்ம ஆண்டவருக்கு விரோதிகளானோம். परमेश्वर और हमारे बीच में एक बड़ा दीवार खड़ा हो गया। நமக்கு ஆண்டவருக்கு நடுவுல ஒரு சுவர் வந்து விட்டது. बाइबल वही कहता। வேதாகமம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वो वचन किधर है? कोई पढ़ सकते हैं वो वचन? பகையாக நின்ற நடுச்சுவரை, कोलोसियों की पत्री, हाँ? दूसरा अध्याय 14। अदिल्ला नहीं, ठीक है, वो भी है। वो नहीं है, एक्चुअली दीवार करके आएगा, इधर आएगा, ये साइड में इधर करो। एनीवे, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ஆண்டவருக்கு நமக்கு நடுவுல एक दीवार क्या किया था? खड़ा किया था। சுவர் இருந்தது. शैतान ने एक बड़ा दीवार खड़ा किया था। சுவர் இருந்தது. हाँ, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, நல்லா கவனிங்க, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। நல்லா கவனிங்க. वो दीवार, அந்த சுவத்தை, वो दीवार क्या है? विरोध है। அது விரோதம். हाँ, अच्छा ध्यान, वो दीवार को प्रभु ने क्या किया? तोड़ दिया। அதை ஆண்டவர் உடைத்து விட்டாரு. वो दीवार को प्रभु ने क्या किया? அந்த இதே ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு? देखिए, पढ़िए एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय எபேசியர் 2:16 वचन पढ़िए। 16. हाँ, क्रूस पर बैर को नाश करके, हाँ हाँ
देखिए दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से क्या किया, मिलाया। हाँ अब इधर इधर पढ़, 14 वचन पढ़ो, उसमें लिखा है। हाँ हाँ, दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को। अब देखिए परमेश्वर और मनुष्य को अलग करने वाली वो दीवार को जो बीच में थी, उसको तोड़ दिया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, நல்லா கவனிங்க. परमेश्वर और हमारे बीच में ஆண்டவருக்கு நமக்கு நடுவுல இருந்த एक बड़ा दीवार को शैतान ने खड़ा किया था। பெரிய சுவரை பிசாசான ஏற்படுத்தியிருந்தான். समझ रहे हैं? புரியுதா உங்களுக்கு? बड़ा दीवार को ஒரு खड़ा। பெரிய சுவர். कुछ घर में देखिए, சில வீடுகளை பாருங்க, आप देखे क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन दो भाई लोग रहेंगे, ரெண்டு சகோதரர்கள் இருப்பார்கள். दोनों भाई लोग कैसे एक ही घर में रहते हैं, ரெண்டு சகோதரர்கள் எங்க இருப்பாங்க, ஒரே வீட்டுல தான் இருப்பாங்க. लेकिन जब भाई लोगों के बीच में झगड़ा आने से क्या करते हैं, சகோதரர்களுக்கு நடுவுல பிரச்சனை வரும் பொழுது क्या करते हैं, बीच में दीवार खड़ा कर, நடுவுல ஒரு சோறு கட்டிடுவாங்க. तू वो पार मैं ये पार। நீ அந்த சைடு நான் இந்த சைடு. आप समझ रहे हैं? ऐसा देखे आपने? அப்படி பாத்திருக்கீங்களா நீங்க? परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, शैतान ने परमेश्वर और हमारे बीच में एक बड़ा दीवार को खड़ा किया था। உங்களுக்கு நமக்கு ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு பெரிய சுவரை பிசாசான உண்டாக்கி वो வைத்திருந்தான். दीवार को कहां पर यीशु ने तोड़ा? அந்த சுவரை ஆண்டவர் எங்க உடைத்தாரு? क्रूस पर यीशु ने சிலுவையில இயேசு உடைத்தாரு. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मेल मिलाप को लेकर आया। மனிதனுக்கு ஆண்டவருக்கு ஒரு சமாதானத்தை கொண்டு यीशु के வந்தாரு. खून के द्वारा இயேசுவோட இரத்தத்தின் மூலமாக परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ஆண்டவருக்கு நமக்கு ஒரு சமாதானம் உண்டானது. परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் बच्चा ध्यान से सुनिए, நல்லா கவனிங்க. इसलिए यीशु का खून में देखिए हमें शांति मिलती है। இயேசுவோட இரத்தத்தில் நமக்கு சமாதானம் கிடைக்கும். देखिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मेल मिलाप किया, ஆண்டவருக்கு மனிதனுக்கு இடையில ஒரு சமாதானம் கிடைத்தது. इतना ही नहीं, यीशु के खून के द्वारा हमें शांति मिलता है। அதோட மாத்திரம் இயேசுவோட இரத்தத்தினால நமக்கு சமாதானம் கிடைக்கும். हमें शांति, उसने अपने खून के द्वारा ही शांति को कमाया। இயேசுவோட இரத்தத்தினால் நம் சமாதானத்தை அவர் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார். हाँ वही वचन में लिखा है कि அதே यूहन्ना के किताब யோவானின் में சுவிசேஷம் आप उधर पढ़ेंगे, அதை நீங்க படிக்கும் பொழுது यीशु हमारे लिए रख कर गया है। அவர் நமக்காக வைத்துட்டு போனாரு. यूहन्ना सुसमाचार के किताब 14वां अध्याय 27वां वचन 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, देखिए अपने शांति तुम्हें देता हूं। हाँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, न डरे। देखिए परमेश्वर यीशु कहते हैं, இயேசு சொல்லுகிறாரு, मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं। நான் என்னுடைய சமாதானத்தை உனக்கு தருகிறேன். देखिए जैसा संसार देते वैसे नहीं, உலகம் கொடுக்க பிரகார சமாதானம் मैं கிடையாது. अपना शांति मैं क्या करता हूं तुम्हें देता हूं। என்னுடைய சமாதானத்தை உனக்கு கொடுக்கிறேன். परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், इस दुनिया में देखिए लोगों के पास सब कुछ है, இந்த உலகத்துல ஜனங்களுக்குள்ளே பாருங்க எல்லாம் இருக்குது, लेकिन शांति नहीं है। ஆனா சமாதானம் இல்ல. क्या नहीं है? शांति नहीं। ஆனா சமாதானம் இல்ல. पैसा है, பணம் இருக்கிறது, घर है, வீடு இருக்கிறது, गाड़ी है, வண்டி இருக்கிறது, अच्छा नौकरी வேலை है, இருக்குது, सब कुछ, எல்லாம் இருக்குது, लेकिन क्या नहीं है? ஆனா எது இல்ல? शांति नहीं है। சமாதானம் இல்ல. ये संसार जो शांति देता है, இந்த உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் वो शांति थोड़े समय के लिए, அது கொஞ்ச நேரத்திற்காக மட்டும்தான். वो शांति कितने समय के लिए? थोड़े समय के அது लिए। கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். लेकिन यीशु कहते हैं ये संसार जो शांति देती है वो नहीं, இந்த உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் இல்ல. मैं अपने शांति तुम्हें देता, நான் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு मैं கொடுக்கிறேன். अपने शांति तुम्हें देता। நான் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். थोड़ा इधर हो जाए, आप आगे आइए, थोड़ा इधर हो जाइए, उनको बैठने। मैं अपने शांति क्या करता हूं तुम्हें देता। நான் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அல்லேலூயா. परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் देखिए क्रूस के द्वारा சிலுவையின் மூலமாக तीसरा आशीष हमें शांति मिलती है। மூணாவது ஆசீர்வாதம் நமக்கு சமாதானம் கிடைக்கிறது. तीसरा आशीष हमें शांति मिलती மூணாவது சமாதானம் நமக்கு சமாதானம் கிடைக்கிறது. है। फोर्थ நாலாவது ले लीजिए, एफिसियों की पत्री எபேசியர் दूसरा अध्याय 2:13 वचन। 13. पढ़िए। देखिए फिर से बोलिए, मुझे पहला क्या आशीष मिलता है? ஃபர்ஸ்ட் இயேசுடைய இரத்தத்தால என்ன கிடைக்கும்? चलोगे, बोलिए।
पहला यीशु के खून के द्वारा हमें क्या आशीष मिलता है? ஃபர்ஸ்ட் இயேசுடைய இரத்தத்தினால் என்ன கிடைக்குது? इधर देखिए, बाद में निकालिए, पहला बोलिए। पहला यीशु के खून के द्वारा हमें क्या आशीष मिलता है? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது? हाँ, पापों की क्षमा। பாவத்திலிருந்து விடுதலை। सेकंड जय मिलता है। ஜெயம் கிடைக்குது। थर्ड, மூணாவது शांति मिलता சாந்தி। है। फोर्थ ले लीजिए, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13वां वचन। हाँ, तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा अभी किधर आगे निकट आके। हालेलुया, 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 हालेलुया। फोर्थ ब्लेसिंग, நாலாவது blessing, हम यीशु से हम किधर थे? परमेश्वर से हम दूर थे, நம்ம ஆண்டவரை காட்டிலும் ரொம்ப தூரமாக இருந்தோம்। लेकिन यीशु के खून के द्वारा இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாக एक व्यक्ति परमेश्वर का करीब आ जाता है। நம்ம இயேசு அருகிலுக்கு போய் விட்டோம்। परमेश्वर के करीब आ जाता है। இயேசுவோட அருகில போய் விட்டோம்। देखिए, आपको अगर परमेश्वर के पास आना है, உங்களுக்கு ஆண்டவர் கிட்ட வரணும்னா देखिए यीशु के खून के द्वारा हम आ सकते हैं। நம்ம இயேசுவோட இரத்தத்தின் மூலமாக நாம் வர முடியும்। यीशु के खून के द्वारा आ सकते हैं। இயேசுவோட இரத்தத்தின் மூலமாக நாம் வர முடியும்। देखिए, दाऊद कहता है, தாவீது விதமாக சொல்லுகிறார், भजन संहिता में पढ़ेंगे, சங்கீதத்துல நீங்க வாசிக்கும் பொழுது कितने बार तो वो कहता है, எத்தனை முறையோ அவர் சொல்லுகிறார், प्रभु मुझसे दूर मत होना। ஆண்டவர் உம்மை விட்டு என்னை தூரப்படுத்தாதேயும்। क्यों मुझसे दूर होते हो? நான் என்னை உம்மை விட்டு என்னை ஏன் தூரப்படுத்துகிறீங்க? ऐसा कई बार वो प्रार्थना करता அப்படி है। நிறைய முறை அவர் ஜெபிக்கிறார்। परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में जब वो प्रभु से दूर हो जाता ஒரு है, மனிதன் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போகும் பொழுது उसके जीवन में बहुत संकट आ जाता है। அவனுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் பிரச்சனைகள் காணப்படும்। बाइबल में कोई है ऐसा जो प्रभु से दूर हो गया? அப்படி யாராவது இருக்கிறாங்க ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போனவர்கள்? ऐसा कोई है? कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं मुझे प्रभु से दूर हो गया, ऐसा कोई है? ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போனாங்க வேதத்துல யாரு சொல்லுங்க பாப்போம்। हाँ, बोलिए। हाँ, ओके, सुलेमान யோனா, और योना, मेन पॉइंट उसने बोला, योना। हाँ, अब बोलिए। और बोलिए। आप लोग इतना सोच रहे हैं। सामुएल कभी नहीं। साउल राजा। साउल राजा, हाँ। सामुएल मरते टाइम भी उसने बोला, साउल राजा। और हाँ, क्या नहीं, दाऊद दूर का होता था, आता था, ऐसा था उसका, वो चलता था। और भी है बहुत सारे लोग, सिमसोन है। और यीशु एक दृष्टांत में कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र। இயேசு ஒரு காரியத்துல ஓமையாக சொல்லுகிறார்। एक पिता का 2 लड़के थे, ஒரு தகப்பனுக்கு 2 பசங்க இருந்தாங்க। उसमें से एक बेटा, ஒரு பையன் வந்து क्या हो जाए, पिताजी को छोड़कर அப்பாவை விட்டு वो दूर देश चला गया। ரொம்ப தூரமாய் போய் விட்டான்। हाँ, वहां जाकर जब तक पैसा था थोड़ा अच्छा लगा उसको, அங்க இருக்கிற வரைக்கும் பைசா இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருந்தது, थोड़ा दिन अच्छा गया, கொஞ்ச நாள் நல்லா போனது। उसके बाद में क्या हो गया, शुरू हो गया। அதுக்கு பிறகு ஆரம்பித்து விட்டது। उसके बाद में पैसा खत्म हो गया, பைசா முடிந்தது, सब दोस्त लोग चले गए, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் போயிட்டாங்க, अभी कोई नहीं है साथ में, இப்போ யாரும் கிடையாது கூட, अकेला हो गया, இப்போ தனியாயிட்டாங்க, खाने के लिए कुछ नहीं है, இப்போ சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது, काम ढूंढ कर गया तो काम भी नहीं मिल रहा है, வேலை தேடி போன வேலையும் கிடைக்கல, आखिर में एक काम मिला सुअर चराने का, கடைசி ஒரு வேலை கிடைச்ச பஞ்சு மேய்க்கிற வேலை, पर सुअर को जो खाना मिलता है वो खाना भी उसको नहीं அந்த मिला। சாப்பாடு கூட அவனுக்கு கிடைக்கல। उसके बाद वो सोचता அது है பிறகு அவன் யோசிச்சான், कि फिर पिता के पास आता है, நான் என் தகப்பன் வீட்டுக்கு போகிறேன்। फिर किधर आता है, पिता के पास। அது பிறகு எங்க போனா தகப்பன் வீட்டுக்கு। परमेश्वर के बच्चे इसलिए परमेश्वर से दूर नहीं होना। ஆண்டவரை நம்ம ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போக கூடாது। और भी देखे, योना के जीवन में देखे, யோனாவுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும் பொழுது योना को देखकर प्रभु कहते हैं तू निनिवे में जाकर कर, நினிவேக்கு போ சொன்னாரு। लेकिन वो कहां जाता है, दर्शिश। அவன் எங்க போனா தர்ஷீஸ்। वो वचन में लिखा है कि वो प्रभु के उपस्थिति से भाग कर गए, ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு ஓடி போனான்। भाग कर गया करके ஆண்டவருடைய लिखा। சமூகத்தை விட்டு
விட்டு ஓடி போனான். देखिए लास्ट में क्या हो, जहाज में चढ़ के बैठा, அவன் கப்பல்ல ஏறி உட்கார்ந்துட்டான். जहाज में चढ़ के आराम से नीचे जाके सो गए. நல்லா கீழ் தளத்துல போய் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். अच्छा एक स्टोरी है. நல்ல ஒரு ஸ்டோரி. हाँ, बच्चे लोगों को सब सुनने के लिए अच्छा लगेगा. நல்லா கேட்க நல்லா இருக்கும். हाँ, जहाज प्रभु ने बोला तू निनिवे में जा, நினிவேக்கு போன்ற ஆண்டவர் சொன்னாரு. लेकिन उसने क्या किया, जहाज में टिकट निकालकर அவன் கப்பல்ல டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு दर्शिश जाने के लिए बैठ गया. தர்ஷிஸ் போவதுக்காண்டி உட்கார்ந்து விட்டான். जहाज में जाके अच्छा से सो गया, நல்லா கப்பல்ல போய் நல்லா தூங்கிட்டு கொண்டிருந்தான். अच्छा से सो गया. நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தான். परमेश्वर ने एक बड़ा सुनामी को भेजा. ஆண்டவர் ஒரு பெரிய சுனாமி அனுப்புனாரு. अभी जहाज क्या होने वाला, डूबने वाला. இப்ப கப்பல் மூழ்க போகிறது. ये आराम से सोया है, இவன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். कुछ नहीं पता, அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ये अच्छा से सोया है. இவன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். जहाज में जितने लोग थे सब डर गए. எத்தனை பேர் தான் எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க. उन्होंने जितना सामान लाया था सब उठा के डाला, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாங்க. समुद्र में उठा के डाला, கடல்ல போட்டாங்க. फिर भी नहीं. ஆனாலும் இல்ல. लास्ट में चिट्ठी डालकर देखा, அது சீட்டு போட்டு பார்க்கும்போது ये सुनामी क्यों आया, ஏன் சுனாமி வந்தது, किसके कारण, யாருனால, तब उसके नाम आया योना का. அது பேர் வந்து யோனா. हाँ, जाकर योना को ढूंढ रहे तो वो नीचे जाके आराम से யோனா सोया. நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். उसको पकड़ के लाया, அவனை பிடிச்சு கொண்டு வந்தாங்க. उसको बोला अभी तेरे वजह से इतना बड़ा உன்னாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை, हाँ, हमें भी प्रॉब्लम, எங்களுக்கும் பிரச்சனை, अभी क्या करना है. இப்ப என்ன செய்யணும். तब उसने बोला இப்ப அவன் சொன்னா अभी कुछ नहीं कर सकते, இப்ப ஒண்ணும் செய்ய முடியாது, एक ही रास्ता है, ஒரே ஒரு வழி, मुझे उठाकर क्या करो समुद्र में என்ன தூக்கி கடல்ல போட்டுருங்க. डालो. वो योना को उठाकर समुद्र में डाला, யோனா தூக்கி கடல்ல போட்டாங்க. एक बड़ा मछली आया, ஒரு பெரிய மீன் வந்தது. मछली उसको क्या किया, निगल लिया. மீன் வந்து சாப்பிட்டுட்டு, मछली का पेट में बहुत अच्छा रह सकते क्या, मछली के पेट में 3 மீன் दिन வயித்துல எப்படி இருந்தான், मछली के पेट में कोई अच्छा से रह सकता है. மீன் வயித்துல நல்லா இருக்க முடியுமா, इधर से एक कांटा घुसा रहेगा, இங்க இந்த ஒரு முள்ளு குத்தும், इधर से एक कांटा घुसा அங்க இந்த ஒரு रहेगा, முள்ளு குத்தும், कैसा रहेगा सोचिए, எப்படி இருக்கும், है कि नहीं, कितना तकलीफ हुआ रहेगा. எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். 3 दिन, 3 நாள். हाँ, तीसरा दिन उसको जाके उधर निनिवे में ही जाके छोड़ दिया. நினிவேல போய் விட்டுட்டு, मछली निनिवे में जाके उसको उल्टी किया. நினிவேல போய் உல்ட்டி எடுத்துட்டு. सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், इसलिए प्रभु से कभी भी दूर नहीं जाना, ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒருபோதும் தூரமா போக लेकिन கூடாது. यीशु मसीह का खून இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தம் आपको और मुझे உங்களையும் என்னையும் यीशु के पास लाता, இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கொண்டு यीशु வரும். के करीब लाता, இயேசு கிட்ட கொண்டு வரும். यीशु के पास क्या, இயேசு கிட்ட கொண்டு வரும். यीशु का खून में इतना, இயேசுடைய இரத்தத்துல அவ்வளவு வல்லமை காணப்படுகிறது. यीशु का खून में इतना இயேசுடைய இரத்தத்துல அவ்வளவு வல்லமை காணப்படுகிறது. 5वां आशीष में 5வது ஆசீர்வாதம் हम प्रार्थना में जाने वाले நம்ம हैं. சொல்லிட்டு நம்ம ஜெபிக்கலாம். हाँ, आप पढ़िए इब्रानी के किताब எபிரேயர் 10वां अध्याय 10 11वां वचन. 11 10 11 हाँ 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 हाँ, एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, हाँ देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், उसमें कैसा लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, இல்ல என்ன எழுதுறது புரியல, लेकिन तमिल बाइबल में अच्छा से दिया தமிழ்ல है. எழுதப்பட்டிருக்குது. हाँ, महापवित्र स्थान में जाने के लिए மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போவதற்காக यीशु मसीह के खून के द्वारा हम जा सकते இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக நாம் செல்ல हैं. முடியும். यीशु के खून के द्वारा இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக एक व्यक्ति महापवित्र ஒரு மனிதன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் போக முடியும். आप अच्छा ध्यान से நல்லா கவனிங்க. सुनिए, यहूदी लोगों का जो मंदिर है, யூதர்களுடைய ஆலயம் எப்படி இருக்குன்னா, उसमें भी देखिए, அது வந்து फर्स्ट देखिए आंगन, ஃபர்ஸ்ட் பிரகாரம், हाँ, उसके बाद देखिए पवित्र स्थान, பரிசுத்த ஸ்தலம், उसके बाद में महापवित्र, அது பிறகு மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். वो महापवित्र स्थान அந்த में மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துல कोई भी नहीं जा सकता, யார் போக முடியாது. सिर्फ महायाजक,
பிரதான ஆசாரியன் மட்டும்தான். याजक भी नहीं, ஆசாரியன் போக முடியாது. महायाजक, பிரதான ஆசாரியன் महायाजक साल में एक बार जा सकता, வருடத்துல ஒரு முறை பிரதான ஆசாரியன் உள்ளே போவான். लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், आप और मैं, நீங்கள் நானும் यीशु के खून के द्वारा இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தின் மூலமாக पवित्र स्थान में जा सकते, மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் போக முடியும். पवित्र स्थान में அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், ये महा पवित्र स्थान किसको दर्शाता இந்த है? மகா பரிசுத்தம் எதை குறிக்கிறது என்றால் स्वर्ग को दर्शाता है, பரலோகத்தை குறிக்கிறது. स्वर्ग को दर्शाता है। பரலோகத்தை குறிக்கிறது. एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना है, ஒரு மனிதன் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டுமானால் यीशु के खून के द्वारा वो स्वर्ग में जा இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக தான் பரலோகத்துக்கு போக यीशु முடியும். के खून के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। இயேசுவுடைய இரத்தம் இல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனும் பரலோகத்துக்குள்ள போக முடியாது. परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், आपको अगर स्वर्ग में जाना है, நீங்க பரலோகத்துக்கு போக வேண்டுமானால் यीशु के खून के द्वारा स्वर्ग में இயேசுவுடைய जा सकते, இரத்தத்தின் மூலமாக தான் நாம் அந்த பரலோகத்திற்குள் போக முடியும். नहीं तो कोई नहीं जा सकते। இல்லைன்னா யாரும் போக முடியாது. परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், कुछ लोग सोचते हैं சில பேர் யோசிக்கிறார்கள், स्वर्ग नरक ये सब है பரலோகம் நரகம் இருக்கா, क्या? ये सब है क्या? எல்லாம் இருக்குதா, ये सब है क्या? எல்லாம் இருக்குதா? मैं नहीं विश्वास करता हूँ, நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுதாங்க. मैं नहीं विश्वास करता हूँ, நான் விசுவாசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ऐसा लोग कहते हैं அப்படி ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். कि हमने नहीं देखा है। நான் பார்க்கல. किसने देखा? யார் பார்த்தா? किसने देखा? யார் பார்த்தா? इसलिए हम नहीं विश्वास करते। ஆகவே நாங்கள் விசுவாசிக்க மாட்டோம். देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, आप विश्वास करें या ना करें, நீ விசுவாசிச்சிலோ இல்லையோ स्वर्ग है और नरक भी है। பரலோகமும் இருக்குது, நரகமும் இருக்குது. अमेरिका को आपने कभी देखा है? அமெரிக்காவை பார்த்திருக்கீங்களா? देखा है, பார்த்திருக்கீங்களா? लेकिन अमेरिका है करके आप विश्वास कर, அமெரிக்கா இருக்குன்னு விசுவாசிக்க தானே? ऐसा कैसा? எப்படி? वैसे ही स्वर्ग भी है। அதே போலதான் பரலோகமும். हाँ, आपने और मैंने नहीं देखा, நீங்கள் நானும் பார்க்கல, लेकिन हम विश्वास ஆனா நாம் விசுவாசிக்கிறோம். है, இருக்குது, है। இருக்குது. परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் देखिए, பாருங்க, एक्चुअली कुछ जापान रशिया के कुछ साइंटिस्ट लोग, ரஷ்யாவில் சில சயின்டிஸ்ட்காரங்க, रशिया एक्चुअली कम्युनिस्ट कंट्री है। ரஷ்யா வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு. रशिया कौन सा कंट्री है? कम्युनिस्ट। ரஷ்யா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி. परमेश्वरी नहीं है। ஆண்டவரே கிடையாது. कम्युनिस्ट बोलेंगे तो वो परमेश्वरी नहीं है करके, கம்யூனிஸ்ட்னு சொல்லும்போது ஆண்டவரே கிடையாது. स्वर्ग नरक ये सब कुछ भी नहीं है, பரலோக நரகம் எதுவுமே கிடையாது. वो कम्युनिस्ट कंट्री के जो साइंटिस्ट लोग हैं, அந்த கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரில சயின்டிஸ்ட்காரங்க उन्होंने एक जांच किया। அவங்க வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. क्या जांच की? ये पृथ्वी के निचली भाग में क्या है, இந்த பூமிக்கு அடியில என்ன இருக்குது क्या है करके उनको देखना அவங்களுக்கு था। பார்க்க ஆசை. इसलिए उन्होंने क्या किया? जांच किया। அவங்க அறிந்து கொண்டார்கள். उन्होंने एक होल डालने के लिए शुरू அவங்க ஒரு ஓட்ட போட சொல்ல ஆரம்பித்தாருங்க. मशीन को रखकर होल डालने के लिए ஒரு शुरू किया। மிஷின் வச்சு ஓட்ட போட ஆரம்பிச்சாங்க. कितने तो किलोमीटर तक वो मशीन गया, எத்தனையோ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த மிஷின் போய்க்கொண்டே இருந்தது. नीचे गया, नीचे गया, नीचे கீழே போய்க்கொண்டே இருந்தது. लास्ट में एक नियुक्त जगह पर கடைசி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அது வரும் பொழுது खाली खाली लग रहा था। ரொம்ப வெறுமையா இருந்தது. अभी देखिए, पत्थर के ऊपर अगर आप मशीन चलाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा थोड़ा तो पत्थर क्या करेगा, ये करेगा। நம்ம ஒரு கல்லு மேல ஒரு மிஷின் போடும்போது தெரியும், அந்த கல்லு மேல खाली जगह में मशीन चलाएंगे वो, ஒரு காலி இடத்துல மிஷின் போட்டா ஏதா தெரியுமா? तो वैसे उनको खाली खाली लगा। அவங்களுக்கு காலியா தெரிஞ்சிச்சு. तब उन्होंने क्या किया? உடனே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? उन्होंने उसमें एक माइक लगाकर அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு மைக் வச்சு नीचे भेजा। கீழே விட்டாங்க. हाँ, उधर क्या है करके साउंड को क्या कर, उधर क्या है क्या नहीं है, அவங்க என்ன சவுண்ட் எல்லாத்தையும் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. तो वहां पर उनको साउंड क्या है? लोगों का चिल्लाने का आवाज, அவ்வளோ ஜனங்கள் சத்தம் போடுகிற ஒரு சவுண்ட், लोगों का चिल्लाने का आवाज, ஜனங்கள் சத்தம் போடுகிற சவுண்ட் அங்க கேட்கப்பட்டது. बचाओ बचाओ என்னை காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க. जो तड़प आग में जलकर जो तड़प तड़प कर जो चिल्लाते हैं, தீயில எப்படி ஒருத்தங்க துடிப்பாங்க, ऐसा लोगों का चिल्ला। आप इवन आप YouTube में भी सर्च कर நீங்க सकते யூடியூப்ல கூட சர்ச் பண்ணலாம். हैं। मैं जो कह रहा हूँ ये सब YouTube में भी है। யூடியூப்லயே இருக்குது. उनका चिल्लाने का उन्होंने जो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने एक किया वो भी है, அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணத யூடியூப்லயே இருக்குது. आप सब देख सकते हैं। நீங்க எல்லாம் வச்சே பார்க்கலாம். लास्ट में वो आवाज सब रिकॉर्ड करके लास्ट
लास्ट में वो साइंटिस्ट लोगों ने कहा லாஸ்ட் அந்த சயின்டிஸ்ட்காரங்க சொன்னாருங்க, ये आवाज और कुछ भी नहीं है, இது சத்தம் வேற ஒண்ணும் இல்ல, वो जगह और कुछ भी नहीं அது है, இடம் வேற எதுவும் ஒண்ணும் இல்ல, वो नरक है। அது நரகம். कम्युनिस्ट देश के साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, கம்யூனிஸ்ட் தேசத்துல உள்ள ये बात சயின்டிஸ்ட்காரங்க, अमेरिका का साइंटिस्ट नहीं, அமெரிக்கா இல்ல, कम्युनिस्ट कंट्री रशिया के साइंटिस्ट लोगों ने कहा கம்யூனிஸ்ட் है தேசம் ரஷ்யா தேசத்துல உள்ளவங்க कि சொல்லுறாங்க, नरक है करके उन्होंने कहा। நரகம் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, इसलिए आप स्वर्ग के ऊपर नरक के ऊपर आप विश्वास करें या ना करें, நீங்க பரலோகம் நரகம் விசுவாசிங்களோ இல்லையோ, स्वर्ग भी है नरक भी है, பரலோகம் இருக்குது நரகமும் இருக்குது, स्वर्ग भी है नरक भी है। பரலோகம் இருக்குது நரகமும் இருக்குது. एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना है, ஒரு மனிதன் பரலோகத்துக்கு போகணும்னா यीशु के खून के द्वारा जा, இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக தான் போக முடியும். यीशु का खून में इतना இயேசுடைய இரத்தத்துல அவ்வளவு மாதிரி வல்லமை காணப்படுகிறது. आपको और मुझे वो स्वर्ग में लेकर जाएगा। அதுதான் அந்த பரலோகத்துக்குள்ள நம்மளை கூட்டி செல்லும். स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयार करेगा। அது நம்ம பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்தும். यीशु का खून में इतना सामर्थ्य, ஆண்டவருடைய இரத்தத்துல அந்த அளவுக்கு வல்லமை காணப்படுகிறது. कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? எத்தனை பேர் பரலோகத்துக்கு போகணும்? कितने लोगों को नरक में जाना है? எத்தனை பேர் நரகத்துக்கு போகணும்? कुछ लोगों को स्वर्ग में भी नहीं जाना है, नरक में भी नहीं जाना है। சில பேருக்கு பரலோகத்துக்கு வேண்டாம், நரகத்துக்கு வேண்டாம். स्वर्ग के लिए भी हाथ नहीं उठाया, பரலோகத்துக்கும் கை வைத்தல, नरक के लिए நரகத்துக்கும் கை வைத்தல, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, இதர் भी नहीं, बीच में लटके गए, நடுவுல தொங்கிட்டு இருக்கோம். बीच में उधर नहीं ना उधर ना इधर। परमेश्वर के बच्चे, ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, हमें स्वर्ग में जाना है, நம்ம பரலோகத்துக்கு போகணும், स्वर्ग में जाना है, நம்ம பரலோகத்துக்கு போகணும். क्योंकि पर यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छा जगह वहां இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக ஒரு நல்ல ஒரு இடம் வைத்திருக்கிறார். 2000 साल हो गए स्वर्ग में जाके, ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு போய் 2000 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. आपके लिए और मेरे लिए एक உங்களுக்காக எனக்காக सुंदर ஒரு जगह, மிகவும் அழகான ஒரு இடத்தை வைத்திருக்கிறார். वचन बाइबल में लिखा है कि वो मनुष्य के हाथों से அது बना, மனிதனால உண்டாக்கப்பட்டதல்ல, परमेश्वर ने खुद बनाया, அது ஆண்டவரே உண்டாக்கினது, अपने हाथों से அவர் தன்னுடைய बनाया। கரத்தினால உண்டாக்கினது. सोचिए अगर परमेश्वर ही बनाया है, ஆண்டவர் அதை உண்டாக்கினால் कितना अच्छा बनाया, எவ்வளவு அழகா உண்டாக்கி இருப்பாரு. आप समझ रहे हैं? புரியுதா உங்களுக்கு? परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, वो स्वर्ग में अगर जाना है, அந்த பரலோகத்துக்குள் நீங்க போகணும்னா यीशु के खून के द्वारा जा, இயேசுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக போக முடியும். यीशु के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो जा सकते, இயேசுவை விசுவாசிக்கும் பொழுது போக முடியும். यीशु बपतिस्मा लेने वाला ही उधर जा सकते, ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறவர்கள் தான் அங்க போக इसलिए முடியும். हम क्या करना है, जल्दी से बपतिस्मा सब ले, ஆகவே நம்ம சீக்கிரமா ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे लोग, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், यीशु का खून ही आपको किधर स्वर्ग में ले ஆண்டவருடைய இரத்தம் தான் நம்மளுடைய பரலோகத்துக்கு அழைத்து செல்லும். देखिए यीशु के खून के द्वारा और भी बहुत सारा आशीष, ஆண்டவருடைய இரத்தத்தின் மூலமாக இன்னும் अनेक ஆசீர்வாதங்கள் और भी காணப்படுகிறது. बहुत सारा आशीष है। இன்னும் अनेक ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது. मैंने यीशु का खून के द्वारा मिलने वाला आशीषों को मैं एक बार लिखने के लिए शुरू किया था, நான் இயேசுடைய இரத்தத்தினால் கிடைக்கிற ஆசீர்வாதத்தை எழுத ஆரம்பித்தேன். 40-50 मैं लिखा, 40-50 பாயிண்ட் கிட்ட எழுதினேன். उसके बाद मैं छोड़ दिया, விட்டுட்டேன், मैं कंटिन्यू नहीं किया, கண்டினியூ பண்ணல. लेकिन अगर लिखने जाएंगे और भी बहुत सारे 40-50 ने उससे 40-50 இன்னும் நிறைய இருக்கிறது. इतना ब्लेसिंग्स है, அவ்வளவு மாதிரி ஆசீர்வாதங்கள் இயேசுடைய இரத்தத்தில் இருக்கிறது. यीशु के खून में इतना, ஆண்டவருடைய இரத்தத்தில் அவ்வளவு மாதிரி ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. इतना पावर यीशु, அவ்வளவு மாதிரி வல்லமை இயேசுடைய இரத்தத்தில் இருக்குது. वचन में लिखा है कि வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, आबेल का खून, ஆபேலுடைய இரத்தத்தை காட்டிலும் ये पृथ्वी से परमेश्वर को पुकारा, இயேசுவை ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டது. सोचिए आबेल एक मनुष्य, ஆபேல் ஒரு மனிதன், उसका खून में इतना सामर्थ्य है, அவனுடைய இரத்தத்தில் இவ்வளவு வல்லமை तो இருந்தால் यीशु का खून में कितना இயேசுடைய இரத்தத்தில் எவ்வளவு வல்லமை இருக்கும். आप समझ रहे हैं? புரியுதா உங்களுக்கு? यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य, இயேசுடைய இரத்தத்தில் அதிக வல்லமை காணப்படுகிறது. आइए हम सब खड़े நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நிற்கலாமா? खड़े हो जाएंगे थोड़े समय, 10-15 मिनट हम प्रार्थना में ஒரு जाने 15 நிமிஷம் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, कोई भी अभी अपने आंखों को मत खोलिए, सभी लोग, बच्चे लोग, सब लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, एक 10-15 मिनट के लिए कोई आंख मत खोलिए, आंख मत खोलिए, कोई भी आंखों को मत खोलिए,
सब लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कर कर वो कलवारी क्रूस की ओर देखिए। वो कलवारी क्रूस पर यीशु ने अपने खून बहाया है। कलवारी क्रूस पर यीशु ने अपने खून बहाया है। उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं रहे बिना पूरा खून उसने बहा दिया है। पूरा खून यीशु ने बहाया है। यीशु के खून में बहुत सामर्थ्य है। मैंने यीशु के खून से मिलने वाले 5 आशीषों के बारे में मैंने आपके बीच में बताया। फर्स्ट, हमें पापों से क्षमा मिलता है। यीशु का खून आपको धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है। शरीर को शुद्ध, शरीर को अच्छा साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसको साफ करने के लिए यीशु का खून, यीशु का खून आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। उसका खून में बहुत सामर्थ्य है। सेकंड, यीशु का खून हमें जय देता है। यीशु का खून से हमें जय मिलेगा, पाप के ऊपर जय मिलेगा, शैतान के ऊपर जय मिलेगा, संसार के ऊपर जय मिलेगा। आपका जीवन में यदि आपने कोई पाप को छोड़ दिया, फिर से वो पाप आपको याद आ रहा है, आपका माइंड में जब वो पाप याद आएगा तो यीशु का लहू की जय करके बोले। थोड़े समय आप यीशु का लहू की जय कर कर बोलकर देखिए। मैं कहता हूं आपका माइंड में से वो दुष्ट शैतान निकल जाएगा। आपका माइंड में जो पाप, वो पाप पूरे रीति से निकल जाएगा। पूरे रीति से वो आपके माइंड में से निकल जाएगा। वो शैतान के ऊपर तुम जय पा सकते हो, वो पाप के ऊपर तुम जय पा सकते हो। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। थर्ड, मैंने कहा यीशु के खून के द्वारा मेल मिलाप, मेल मिलाप, शांति, शांति हमें मिलती है। मेल मिलाप होता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। शैतान ने एक बड़ा दीवार को खड़ा किया था। शैतान ने एक बड़ा दीवार को खड़ा किया था, लेकिन यीशु क्रूस पर उस दीवार को तोड़ दिया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मेल मिलाप, एक मेल मिलाप, एक मेल मिलाप। द नेम ऑफ जीसस, जीसस, यीशु के खून के द्वारा हमें शांति मिलती है, शांति मिलती है। फोर्थ, यीशु के खून के द्वारा हम परमेश्वर के करीब आते हैं। हम परमेश्वर से दूर थे, हम प्रभु से दूर थे, लेकिन यीशु के खून के द्वारा ही एक व्यक्ति यीशु के पास आ सकता है। यीशु के खून के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है।
यीशु का खून हमें परमेश्वर के पास जाने में मदद करता है। फिफ्थ, यीशु का खून हमें महापवित्र स्थान पर ले जाता है। यीशु का खून हमें महापवित्र स्थान, वो महापवित्र स्थान स्वर्ग को दर्शाता है। यीशु के खून के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। यीशु का खून हमें स्वर्ग में ले जाता है, हमें स्वर्ग में ले जाता है, हमें स्वर्ग में ले जाता है, हमें स्वर्ग में ले जाता है। हालेलुया। यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य है, यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य है। वो कलवारी क्रूस को देख के कोई आंख नहीं खोलना है, वो कलवारी क्रूस को देखिए, कलवारी क्रूस को देखिए। हमें फैन ऑफ कर दे, फैन ऑफ कर दे। हमें वो कलवारी क्रूस को देखिए, क्योंकि यीशु अपना खून को आपके ऊपर अभी उंडेलने वाले हैं। वो खून में बहुत सामर्थ्य है। एक एक बूंद खून में इतना पावर है, किसी में नहीं। एटम बॉम्ब में भी उतना पावर नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि अगर एक देश में एक एटम बॉम्ब डालेंगे तो पूरा देश नाश हो जाता है, भस्म हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं यीशु का खून, एक बूंद खून में उससे भी ज्यादा पावर है, उससे भी ज्यादा पावर है। वो खून अभी आपके ऊपर उंडेलने वाला है, वो खून यीशु आपके ऊपर उंडेलने वाला है, यीशु आपके ऊपर उंडेलने वाला है। वो खून जैसा ही आपके ऊपर आएगा, शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। वो खून से यीशु आपको पूरा आपको परमेश्वर धोकर शुद्ध करेंगे। आपका सिर से लेकर पैर तक यीशु अपना खून से आपको धोने वाले हैं, आपका पाप को धोकर शुद्ध करने वाले हैं। धोते समय आपका शरीर में जिधर भी बीमारी है वो सब निकल जाएगा। पेट में, घुटने में, सिर में, हाथ में, पैर में, जहां जहां पर है सब अभी निकलने वाला है, निकलने वाला है, निकलने वाला है, निकलने वाला है। सब बीमारी चंगाई हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा। यीशु अपना खून को इसी समय पर वो आपके ऊपर उंडेल रहा है। सभी लोग आंख को बंद रखे, कोई आंख नहीं खोलना है, आंख नहीं खोलना है। यीशु अपना खून को यहां पर खड़ा रहने वाले हर एक के ऊपर उंडेल रहा है, उंडेल रहा है, उंडेल रहा है। एक एक बूंद कर कर वो आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर रिसीव, 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 रिसीव। एक एक बूंद खून में इतना पावर है, एटम बॉम्ब से भी ज्यादा पावर है, एटम बॉम्ब से भी ज्यादा पावर। आमीन, आमीन। उंडेल रहा है, उंडेल रहा है। आपको पूरा यीशु अपने खून से आपको पूरा धो रहे हैं, धोकर शुद्ध कर रहे हैं। आपके सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को यीशु अपने खून से धो रहे हैं, धो रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। आमीन, 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 आमीन। पूरे रीति से, पूरे रीति से, पूरे रीति से। आमीन, 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 आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। पूरा पूरा धोकर शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं,
दुष्ट आत्मा सब निकल कर भाग रहा है, दुष्ट आत्मा सब निकल कर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। निकल यीशु के नाम से, कम आउट। आमीन। सब निकल रहे, सब निकल रहे, नहीं रह सकते। एक एक बूंद खून में इतना पावर है, एक बूंद खून ऐसा गिरते समय एटम बम डालने का जैसा पावर है उसमें। आमीन, आमीन। दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता है, भाग रहे, भाग रहे। निकलने दो, अंधकार सब निकलने दो, अंधकार सब निकल रहा है। आपके विरोध में किया वो जादू टोना पूरे रीति से नाश हो रहा है, भस्म हो रहा है, भस्म हो रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। आमीन। यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून पूरा पूरा शुद्ध कर रहे हैं। आपके शरीर में से बीमारी सब निकल रहा है, आपके हाथ में, पैर में, घुटने में, पेट में, कमर में, जहां जहां आपका बीमारी है वो सब निकल रहा है, वो सब निकल रहा है, वो सब निकल रहा है। आपके सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में जितना बीमारी है सब निकल रहा है, सब निकल रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु अपना खून को उंडेल रहे हैं। आमीन, आमीन। थोड़े समय, थोड़े समय अच्छा से प्रार्थना कीजिए, अच्छा से प्रार्थना। वो कलवारी क्रूस को देखिए, 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 देखिए। आमीन। उतर रहा है, 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 उतर रहा है। वो खून का सामर्थ्य, वो खून का सामर्थ्य, वो खून का सामर्थ्य। अग्नि, 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 फायर, 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 फायर। उतर रहा है। अंधकार सब निकल रहा है, अंधकार सब निकल रहा है, दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। आमीन। आपके शरीर को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के भाग रहा है, भाग रहा है। आमीन, 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 आमीन। थोड़े समय आंख बंद रखिए, थोड़े समय, एक दो 4 मिनट आंख बंद रखिए, क्योंकि यीशु आपको अपने खून से पूरा धोकर शुद्ध कर रहे हैं। यीशु खुद शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ आंख बंद कर कर क्रूस को देखिए। वो शुद्ध करते समय बीमारी सब नहीं रखेगा, आधा अधूरा साफ नहीं करेगा, शुद्ध करेगा तो परमेश्वर पूरा शुद्ध करेगा। आपका शरीर में जो भी बीमारी है सब निकाल देगा, दुष्ट आत्मा से उठाकर फेंक देगा, नहीं रहेगा। 2-4 मिनट खाली आंख को मत खोलिए, आप आशीष को खो जाएंगे। आंख बंद रखिए, आधा आंख, ये सब नहीं चाहिए। यीशु और आपके बीच में आप यीशु को आपको धोकर शुद्ध करने के लिए जगह दीजिए। सब निकल रहे हैं आपके शरीर में से, एक एक बीमारी को यीशु निकाल रहे हैं।